Good morning, everyone. A very warm good morning and a heartily welcome to all. I, Ashirwad Sharma, welcome parents, teachers, and all students on behalf of Konark Ideal College to a very special day where you will witness your students' achievements. Navrasas are the 9 basic emotions which everybody have to pass through at least once in their course of life. The 9 emotions are Hasya, Adbhuta, Shanti, Raudra, Veer, Shringara, Karuna, Bhayanaka, and Vibhatsa. At every stage of life, we experience the emotions, and the different stages of life can be symbolized with these emotions as a prime essence of that phase of life. An infant or a baby symbolize Hasiras, where the innocence of the baby always make other joyful and happy. The baby too is a fearless and carefree of all the wonderly pressures, and so always has to certain moon on the lips. They express every emotions, may it be anxiety or pain or merry, because they have no words to let their feelings out, and when they do so, they spread the happiness all around. As the baby grows into a child, the joy turns into adbhutaras, that is wonder. The child finds the things around him wonderful and astonishing. It is when the child starts to accustom himself to the world around him. The child is playful and cheerful, always amused at the pretty things. The child is satisfied with what he has. The joy has no bounds for no reason. This is what makes this stage the most memorable of lifetime. The naughty things that the child involves himself in, and the hopes and leaps of the child when he encounters something new from his perspective are worth watching. As the child grows into an adolescent, which is when he starts experiencing myriad emotions, the young love burgeons and the courage fills him with the strength, but the fear brings him down by step. The thunder soul wavers him through the bad attraction of the period of time. He passes through all the junctions like Veera. He remains focused due to the fear often referred to as Bhayanakras. The amateur soul emerges then into an adult when the realization shapes him into a more focused person with a vision. The young blood rages with fire, that is Rodram, and as he is in an excited state who believes can do anything and everything, responsibilities slowly start the shower on him when he becomes restless and turns into Bhayanak shade of life. The rays of love, that is Shringar, clear the darkness of fear and Karuna to make the life more colorful. The distress in the middle age teachers and best teachers the best lessons of life. All the uncertainties build the disgust, that is Bhibatsa, towards the materialistic pleasure, which motivates him to follow the path of Shanti. He then gives up on everything and leads a peaceful life as an older person. Life is all about carrying emotions because life is amalgamation of navras. So don't miss any of them because they have their own taste that rejuvenate and drive us from within. Thank you. हैप्पी हैप्पी हो जा जदों जाने मैनू मिलनी है जानू मैनू जिन्ना प्यार करदे यार तेरे शक्कां विचों आवे मैनू Good morning, all of you. मैं वेखिया बड़ा नायो लखां विचों आवे A very warm welcome to
I would request our principal ma'am, Dr. Shireen Gonzalez, to escort the guests for lighting the lamp to the stage. Shri Vayan Pandey, President of Adarsh Shikshan Mandal. Shri L.S. Upadhyay Sir, General Secretary of Adarsh Shikshan Mandal. Shri Vijay Upadhyay Sir, Joint Secretary of Adarsh Shikshan Mandal. Dr. Smita Thakarkede, Principal of Pharmacy. Shri Chotu Jadhav Sir, Principal of TED. Shri Mukund Sir, Principal of CBSE Ideal School. And Registrar Sanjay Tiwari Sir. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा। I would request all the dignitaries to have a seat and enjoy the performance for the day.
Good morning and heartily welcome to all. I, Ashivat Sharma, welcome parents, teachers, students, and all the dignitaries of Konark Idol College to a very special day where you will witness your students' achievements and many brilliant performance. Today is going to be the most memorable day of your life. Today, we will show you the 9 emotions of human life. So sit back and relax because this is going to be the most amazing experience of your life. 9 emotions describe the human emotions. In Hindi, we call that Navrasas. The 9 emotions are Adbhuta Ras, Shringara Ras, Bhibhatsa Ras, Shant Ras, Has Ras, Bhayanak Ras, Raudra Ras, Veera Ras, and Karuna Ras. Students of Idol Degree College are coming on stage. So welcome them with a big round of applause. अद्भुत रस भारतीय शास्त्र के 9 रसों में से एक है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब कोई इंसान किसी चीज़ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, इसे ही अद्भुत रस कहते हैं। इसके अंदर आंसू आना, कांपना, आश्चर्यचकित होना और आंखें फाड़कर देखना शामिल। चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। आज से तकरीबन 6 साल 3 महीने और कुछ 28 दिन पहले जब भारत में नोटबंदी की घोषणा हुई थी, तब लोग आश्चर्यचकित रह गए थे। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। इसे ही अद्भुत रस कहते हैं। हिंदी के श्रीमद् भागवत गीता में अद्भुत रस को जताते हुए एक श्लोक है। श्लोक कुछ इस तरह: अखिल भुवन में चर अचर सब, हरि मुख में लिख मातु, चकित भई गद्दद बचना, विकसित द्रुग पुलकातु। शुक्रिया। श्रृंगार रस 9 रसों में से एक, जिसे आमतौर पर हम अट्रैक्शन, ब्यूटी इसके प्रति अनुवादित करते हैं। श्रृंगार रस को हम लाइट ग्रीन कलर से दर्शाते हैं। प्रेम, प्यार ऐसे अनेक शब्द हैं जिनसे हम श्रृंगार रस को जता सकते हैं। भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण, इनकी एक रास लीला है जो श्रृंगार रस से भरी हुई है। इनसे हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कबीर दास जी का एक उदाहरण है: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो रक्षक सोई। धन्यवाद। विविध से रस को 9 रसों में से एक रस भारत मुनि जी ने उनके लिखित नाट्य शास्त्र में बताया था। यह रस आपको घिन, अजीब और डिस्गस्टिंग फील कराने में मदद करता है। यह रस दोनों करने और देखने में कठिन है, क्योंकि कोई भी कलाकार खुद को गिनगिनाते हुए दिखाना और कोई भी दर्शक गिनगिनाती चीज़ें देखना पसंद नहीं करता। यह रस रचनाओं, कलाओं को छोड़कर भी हमारे वास्तविक जीवन में भी बहुत मूल्य रखता है। जैसे आप सब ने धूम्रपान, सिगरेट, स्मोकिंग के ऐड देखे होंगे, और वो जब आप देखते हो तो आपको एक फील होता है अंदर से, उसे ही विविध से रस कहते हैं। धन्यवाद। जगज्जालपालं गजत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभोनीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहम्। नवरस जो शांत रस, जो 9 रसों में से अलग और सबसे महत्व रखता है, जिसका वर्णन शांत नहीं तो उदास के तौर पर दर्शाया जाता है। ओकेशनली स्पेल्ड शांत रस। शांत रस इज अ इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसक्वालिटी which is experience and emotions, is considered as a 9th rasha, a concept of aesthetic flavor of Sanskrit literature, a concept and which is situated and happiness and emotions and self. Thank you.
हास्य रस। हास्य रस को सभी रसों में से महत्वपूर्ण रस माना जाता है। देश के विकास के सफ़र में इंसानों की हंसी कुछ ऐसे गायब हो गई है जैसे देखते ही देखते हाथ से सैनिटाइजर गायब हो जाए। ऐसे में लोगों के चेहरे पर हंसी को लाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती के समान होता है। आपके चेहरे पर हंसी को लाना हमारे लिए एक इनपुट की तरह है, बदले में आपके हंसी ये हमारे लिए आउटपुट के समान है। तो चलिए, दिल के दर्द को जुआ पे लाते नहीं, हम अपनी आंखों से आंसू बहाते नहीं। जख्म चाहे कितने भी गहरे क्यों न हो, हम डेटॉल के सिवा कुछ लगाते नहीं। थैंक यू। भयानक रस। जब किसी भयानक व्यक्ति या वस्तु को देखने या किसी दुखद घटना का स्मरण करते समय मन में व्याकुलता और भय का स्मरण होता है, उसे भयानक रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव है भय। दूसरे शब्दों में कहें तो जब भय उत्पन्न करने वाले विषयों का वर्णन हो तो वहाँ भयानक रस होता है। इसके अनुभव हैं हाथ पैर कांपना, चेहरे का रंग उड़ जाना, उंगलियां चबाना, ये सब भय रस के हैं। धन्यवाद। वीर रस 9 रसों में से एक प्रमुख रस है। जब किसी वाक्य रचना आदि में वीरता का भाव उत्पन्न होता है तो उसे वीर रस कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति कार्य करते समय उस व्यक्ति के मन में जो उत्साह, उमंग और निर्भयता की भावना उत्पन्न होती है, उसे भी वीर रस कहा जाता है। वीर रस से संबंधित मैं आप सभी को एक पंक्ति सुनाना चाहूँगी कि राष्ट्र चेतना के स्वर हम नहीं गाएंगे तो युवाओं में रक्त का उबाल कैसे आएगा। और आज वो सिपाहियों के सर काट ले गया, और आज वो सिपाहियों के सर काट ले गया, कल देशवासियों को बांट के कश्मीर ले जाएगा। थैंक यू। रौद्र रस 9 रसों में से एक रस। रौद्र रस क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। रौद्र रस लाल रंग को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति या कोई पक्ष आपको बुरा भला कहता है, अपमान करता है या आपकी आत्मीय की निंदा करता है तो उससे जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एक्टिविटीज कनेक्टेड टू रौद्र रसा आर शेडिंग ब्लड, सीजिंग ऑफ वेपन, कटिंग, चॉपिंग ऑफ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ क्रोध का वर्णन होता है वहाँ रौद्र रस होता है। ऑलवेज रिमेंबर, एंगर इज जस्ट वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। थैंक यू। करुणा रस। काव्य को सुनकर दुख से आनंद या किसी भाव का अनुरोध होता है, उसको ही करुणा रस कहते हैं। अन्य शब्दों में करुणा रस यह रस है जिसका दुख या विलाप का भाव होता है। करुणा रस कविता काव्य के 9 रसों में से सर्वत्र महत्वपूर्ण रस है। करुणा रस की उपस्थिति ऐसे काव्य में होती है जिस काव्य में दुख या विलाप का भाव होता है, उसे ही करुणा रस कहते हैं। Melodious and heart-touching definitions of 9 emotions given by these students. Please have a big round of applause for them.